Okay, G. Okay, G. So look at So the look at the question, question, please. please. The It question it says says that that we'll read we'll the read the question question first to first solve. to solve. So the So the diagram shows a diagram shows field a field ABCD and ABCD and calculate the calculate the perimeter of the perimeter of field. the field. So first So of all, first we of all, we discussed it discussed it yesterday that the yesterday that the perimeter is perimeter the is the boundary of boundary the of the field. field. Agree? Agree? जो जो लाइंस बाहर लाइंस हैं बाहर हैं उनको उनको perimeter perimeter बोलते हैं. बोलते हैं. Agree? Agree? First of First of all, all, I can I see can see that that I I have have one, two, one, two, three three sides sides available in available the in the perimeter. perimeter. Yes or Yes no? or no? This This 50 50 meter, this meter, this 100 100 meter, meter, and this and this 170 170 meter. meter. Yes or Yes or no? Can no? you Can you guys guys listen to listen to me? me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ji. Okay, जी. Now Now I I have to have to withdraw this withdraw this triangle out. triangle out. मुझे इस मुझे इस triangle को triangle को out out करना है करना like है like that that in in order to order to find out find the out the next next one. one. In order In to order to find out find the out the next next one, one, I have I to have to name it. name it. मुझे मुझे नाम भी नाम भी देने हैं देने हैं इसको इसको D D A A and and that's that's E. E. ये ये 90 का 90 एंगल का बना एंगल हुआ बना है, हुआ है, नजर आ रहा नजर है आ रहा है 120 है 120 है and that's एंड दैट्स 50. तो 50. क्या तो हम क्या लोग हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस से थ्योरम इसको से इसको निकाल निकाल सकते हैं? सकते हैं? जी सर, हमारे पास राइट एंगल भी दिया हुआ है और हमारे पास एक साइड भी दी हुई है, दो साइड्स दी हुई है। तो इसका तो इसका मतलब है मतलब है दैट ई दैट डी ई डी स्क्वायर स्क्वायर मतलब मतलब हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 50 50 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 120 120 स्क्वायर. स्क्वायर. यस और Yes नो? or no? सो So ई टू e डी to d इज is इक्वल्स टू equals to स्क्वायर square रूट root ऑफ of 50 50 स्क्वायर square प्लस plus 20 20 120 120 स्क्वायर. बेटा square. एक बेटा बच्चा एक बच्चा आंसर बता आंसर दे बता इसका, दे ये इसका, क्या ये आ रहा क्या है? आ रहा है? तो सर ये इसका यही वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बेटा बेटा ए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर को आप आप मारो मारो गोली. गोली. समझ आई है समझ कि आई नहीं? है कि नहीं? आपको मैं आपको बार मैं बार बार एक बार ही एक ही फॉर्मूला फॉर्मूला समझा रहा हूँ. समझा रहा एंड द हूँ एंड द फॉर्मूला फॉर्मूला इज इज हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू बेस स्क्वायर बेस प्लस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्क्वायर. स्क्वायर. ठीक है? ठीक है? हाइपोटेन्यूज इज द हाइपोटेन्यूज इज द साइड साइड ऑपोजिट. ऑपोजिट. 3.85 सर। एक एक मिनट. मिनट. Hypotenuse is Hypotenuse the is the side side opposite to opposite to 90. 90 And in and this in this question we are question we are finding finding ED. ED. हमें हमें ED ED चाहिए चाहिए क्योंकि हमें क्योंकि हमें perimeter perimeter निकालना है. निकालना है. So So ED ED square square is is equals equals to to B B square square is is 50 50 square square plus plus 120 120 square. square. अब I अब I don't don't need need ED ED square, square, so so ED is ED is equals equals to to square square root root of of 50 50 square square plus plus 120 120 square. तो square. तो answer is answer is what, what, Shafahad? Shafahad? आंसर इज 130। 30 सर। 130 130 sure? sure? यस सर, So यस। we So we got got 130 130 meters. तो meters, हम तो लोग हम यहाँ लोग पे यहाँ लिख पे लिख देंगे देंगे 130 130 मीटर. मीटर. हमें ये हमें मिल ये भी मिल मिल भी गया. मिल ठीक गया. है जी? ठीक है जी? ओके. ओके. मारो वी मारो आर वी आर फाइंडिंग नाउ फाइंडिंग नाउ डीसी. डीसी. अब हमें अब ये हमें ये साइड साइड फाइंड फाइंड करनी है, तो करनी है, इस तो इस ट्रायंगल को ट्राइंगल को आउट करना आउट करना पड़ेगा. पड़ेगा. ऐसे ऐसे बाहर आपने बाहर आउट आपने आउट करना है करना है. और और बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ऐसी शेप शेप बनानी है बनानी है जैसे यहाँ जैसे पे यहाँ पे बनी हो, बनी हो, ताकि ताकि आप लोगों आप को लोगों को आसानी हो समझने में. समझने यहाँ में. पे यहाँ पे 90 है, 90 है, नाम भी नाम वही भी वही दें दे डी. डी. ये हो ये गया हो गया सी सी और ये और हो ये गया हो बी. गया बी. यहाँ पर यहाँ है पर है 170. 170. यहाँ पर यहाँ पर है है 150. 150. ठीक है? ठीक है? शफाहत? शफाहत? सर इसके अंदर भी सेम वही यस चीज सर। लगेगी जो सेम. ट्रायंगल सेम है। साइड साइड ऑपोजिट टू ऑपोजिट टू 90 90. हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गिवन है गिवन है और और बेस और बेस और परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर से में से एक चीज एक चीज आपने आपने निकालनी है. निकालनी है. तो यू तो यू नीड नीड टू टू सॉल्व दिस सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट क्वेश्चन हियर राइट लाइक हियर दैट. लाइक दैट. यू नीड You डीसी. need तो DC. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर hypotenuse square इज is 170 170 स्क्वायर square इज is इक्वल्स टू equals to 150 150 स्क्वायर square प्लस plus डीसी DC स्क्वायर. square. ठीक है जी? ठीक है जी? अब आपने अब करना आपने है करना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेकिंग. मेकिंग. सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेकिंग कैसे मेकिंग होती कैसे है होती कि है आपने कि डीसी आपने को उधर डीसी ही को छोड़ उधर ही देना है. छोड़ तो देना है. तो 170 170 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 150 150 स्क्वायर स्क्वायर ऊपर ऊपर स्क्वायर रूट स्क्वायर डाल रूट डाल दूंगा और दूंगा इधर और लिख इधर दूंगा लिख दूंगा डीसी. डीसी. एग्री? एग्री? तो अब तो बताएं अब बताएं डीसी की डीसी वैल्यू की क्या आ वैल्यू रही क्या आ है? रही है? सर 80। डीसी की डीसी की वैल्यू आ रही है वैल्यू आ क्या? रही है क्या? 80. 80. तो 80। सो डीसी की डीसी की वैल्यू आ रही वैल्यू है आ रही है 80. 80. तो तो पेरीमीटर होता पेरीमीटर है होता सम है ऑफ सम ऑल ऑफ ऑल साइड्स. ठीक साइड्स. है? ठीक है? तो तो हम हम ई से ई से स्टार्ट लेते स्टार्ट हैं. लेते हैं. तो ये तो हम ये लिख हम लिख देंगे यहाँ देंगे पे यहाँ पे 80. 80. ई से ई हम से हम स्टार्ट स्टार्ट लेंगे लेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर. तो तो 130 130 प्लस प्लस 80 80 प्लस प्लस 170 170 प्लस प्लस 100 100 प्लस प्लस 50. 50. ये ये आंसर है आंसर है आपका. आपका. क्या आ रहा है क्या आ बेटा रहा है बेटा आंसर? आंसर?
130 plus 130 80 plus is 80 210. is 10. 630 What? 630. 630 630 630 meter is meter the is the boundary. boundary. मारो मारो समझ आ समझ गई आ बेटा? गई बेटा? मारो मारो बेटा, समझ बेटा आ समझ गई? आ गई? अच्छा, अच्छा कहते हैं कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट एंगल एंगल ABD। ABD. तो तो ABD ABD is is this one this one angle, angle. yes or Yes no? or no? yes or Yes no? or no? Yes, sir. तो तो आपने क्या आपने करना क्या है करना कि है कि आपने आपने ये वाला ये जो वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये है वाला ये वाला ट्रायंगल आउट ट्रायंगल आउट करेंगे। क्या करेंगे. क्या करेंगे हम करेंगे लोग? हम लोग? वी विल वी विल आउट आउट हम लोग हम इस लोग इस ट्रायंगल को ट्रायंगल को आउट करना आउट है, करना है बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज एज इट इज बनाऊंगा जिस बनाऊंगा जिस तरीके से तरीके से ऊपर बना ऊपर हुआ बना है। हुआ है.
आपने भी पेपर में भी ऐसे ही बनाना है बनाना है ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। सर 120 प्लस बेटा बेटा एक एक मिनट, मिनट बेटा वेट वेट अ मिनट, पहले ट्रायंगल बनाओ, इसको नाम दो ए ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी। अब नाम देंगे ए टू बी इज 100, ये है 150 और ये है 120। आप लोगों को मैंने कोसाइन रूल पढ़ाया था, क्योंकि ट्रायंगल नॉट अ राइट एंगल है, कोई भी एंगल नहीं गिवन। 370 सर 370 बेटा पैरामीटर नहीं निकाल रहा मैं, एंगल निकाल रहा हूँ ए बी डी। तो मुझे ये एंगल चाहिए। तो हम लोगों ने कोसाइन रूल पढ़ा था ऑलरेडी। कोसाइन रूल बनाने का तरीका ये है कि एंगल के अपोजिट साइड जो है वो 120 स्क्वायर आप इधर लिख देंगे, और एंगल आपने जो फाइंड करना है वो कॉस ए बी डी उधर लिख देंगे, कॉस बी लिख दूंगा मैं इधर, ठीक है। और इस साइड पे मैं दरमियान में लिखूंगा 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 150 इंटू 100, राइट मारो। सो इक्वल लगाकर आपने कॉस बी को सब्जेक्ट बनाना है। तो आपको नजर आ रहा है जैन के राइट हैंड साइड पर 150 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आके माइनस होंगे, 120 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, यस और नो। ये -2 150 और 100 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होंगे। -2 इंटू 150 इंटू 100। शफाद आपका कोसाइन रूल नहीं है, अच्छा तो आप बेगम रहें। कॉस बी, सर अच्छा जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डालें बेटा जरा। लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेटर में डालें, फ्रैक्शन का बटन दबाएं, ऊपर लिखें 120 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में -2 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, और टेल मी व्हाट इज द आंसर। जी जैन कर रहे हैं कि नहीं? जी सर मैं कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी 0.27 सर क्या आ रहा है? 0.27 ओके जी 0.6 आ रहा है मेरे पास, आपने गलत किया है, 0.603 आपने कुछ गलत डाला है। ओ तो सर 100 के साथ सर वो स्क्वायर भूल गए हो। अच्छा तो जी फिर सर। कॉस इनवर्स लेंगे, राइट मारो, ऐसे ही होता है ना। तो शिफ्ट दबा के कॉस दबाएं, कॉस इनवर्स आ जाएगा कैलकुलेटर में, आंसर का बटन दबाएं तो 52.89 आ रहा है। तो जैन पेपर में आपने 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर छोड़ना है, तो इट इज 42.9 डिग्रीज, 52.9 डिग्रीज, ओके। फिर अगर हम 53 कर दें फिर? नहीं बेटा नहीं कर सकते, 1 डेसिमल प्लेस तक छोड़ना है, गेट इट। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड दे से दैट कैलकुलेट एंगल CBD। अच्छा CBD किधर है, जरा इधर चेक करना है हम लोगों ने। CBD इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, यस और नो? यस और नो? CBD इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर आउट किया हुआ है, एग्री? ओके in right angle triangle we have three formulas. Some people have curly brown hair through proper brushing, ये हमने पढ़ चुके हैं, एग्री? नाउ वी नीड एंगल बी। अच्छा एंगल बी के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, एंड वी हैव दिस परपेंडिकुलर एज वेल, DC हमने फाइंड की हुई है, दैट इज 80। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हम इस पे तीनों फार्मूले लगा सकते हैं, साइन थीटा भी लगा सकते हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 एंड हाइपोटेन्यूज इज 170। तो नीचे आ जाएं, तो साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 80 एंड हाइपोटेन्यूज इज 170। 170। अब आप ले लें साइन इनवर्स, सो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ द डाटा, एंड साइन इनवर्स ऑफ द डाटा इज साइन इनवर्स ऑफ द डाटा इज क्या आ रहा है आंसर? साइन इनवर्स ऑफ 80 बाय 170। तो पहले शिफ्ट दबा के मारो, आप आंसर बताएं मुझे जरा। 80 डिवाइड बाय 170, साइन इनवर्स लगाना नहीं भूलिएगा। मेरे पास आंसर आ रहा है 28.07, तो मतलब 28.1। मारो, इज दिस राइट और रॉन्ग? यस सर बेटा राइट है कि नहीं? जी सर 28.07 सर जी 07 तो 0 28.1 हो जाएगा, राइट?
अच्छा कहता है the point C is due north of the point and find the bearing of D from B. Point C is due north of B. तो जरा समझ डालें जरा ये क्या कह रहा है. फाइंड द Find बेयरिंग the ऑफ bearing डी of D फ्रॉम बी। from B. तो बेयरिंग तो ऑफ डी bearing of D फ्रॉम from बी। B. तो जरा तो बी जरा पे B पे आप जरा लगा आप दें लगा एक दें एरो। एक एरो. क्या नाम है क्या नाम है आपका? आपका? जैन नजर जैन आ रहा है नजर बेटा? आ रहा है बेटा? मैं जरा मैं इसको जरा थोड़ा इसको सफा थोड़ा कर रहा सफा हूँ कर रहा क्योंकि हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत डायग्राम गंदी बहुत हो गई जी गंदी है। हो सर, आ गई रहा है. है, मुझे नजर में देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ मुझे जी जरा मुझे थोड़ा जरा सा थोड़ा सा ये डायग्राम को डायग्राम ठीक को करना है। ठीक करना है. अच्छा कहता अच्छा है कहता कि है फाइंड कि द फाइंड बेयरिंग द ऑफ बेयरिंग बी। ऑफ बी. फाइंड द बेयरिंग ऑफ फाइंड द डी बेयरिंग ऑफ फ्रॉम बी। डी तो बी पे फ्रॉम बी. आप तो लगाएंगे बी पे आप नॉर्थ। लगाएंगे क्या नॉर्थ. लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ये आपने ये नॉर्थ आपने लगा नॉर्थ लिया, लगा लिया. लाइक दैट। लाइक दैट. ठीक है जी। ठीक है जी. अब आपने अब डी की आपने डी तरफ की तरफ घूमना है। घूमना है. तो इसका तो इसका मतलब मतलब है कि है कि आपको इतना आपको इतना क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मुड़ना बढ़ना पड़ेगा। एग्री, पड़ेगा. यू एग्री नीड यू दिस नीड दिस बेयरिंग, बेयरिंग. यस और यस नो? और नो? यस और यस नो? और नो? सर तो तो इसका इसका मतलब है कि मतलब है कि अभी हम अभी लोगों हम ने लोगों ने ऊपर वो एंगल एंगल निकाल लिया निकाल कि लिया ये कि एंगल ये कितना एंगल आता है। कितना ये आता है. भी ये हमने भी हमने निकाला है, निकाला है दैट दैट इज इज 28.9. 28.9। 28.9 आ रहा 28.9 आ था। रहा था. 28.1। 28.1. वन। तो तो 360 360 माइनस minus 28.1 इज द 28.1 is the आंसर। answer. 360 इज 360 द is टोटल the total बेयरिंग bearing माइनस minus 28.1। 28.1. तो तो क्या आ रहा है क्या आ आंसर? रहा है आंसर? 360 360 माइनस minus 360 360 माइनस minus 28.1। 28.1. तो द तो the आंसर इज answer is 331.9. 331.9। अच्छा जी, अच्छा कह जी रहा है कह रहा है कैलकुलेट द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड ए फील्ड बी ए सी बी डी। सी डी. अच्छा जी। अच्छा जी. तो तो 1 1 हेक्टर इज हेक्टर इक्वल इज टू इक्वल टू 1000 10,000 मीटर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हम स्क्वायर. ये बाद हम में बाद में देखेंगे। देखेंगे. अच्छा, ये अच्छा ये कितने कितने ट्राइंगल है ट्राइंगल बेटा? है बेटा? हाउ मेनी हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स आर देयर? देयर? सर 3 3 ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल्स हैं. 3 तो 3 ट्राइंगल्स के ट्राइंगल्स हम के लोगों हम ने लोगों ने फार्मूला डालना फार्मूला है डालना एरिया है का। एरिया का. तो तो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑल ऑफ मैं ऑल मैं ऐसा करता ऐसा हूँ कि करता हूँ मैं कि जूम मैं इन जूम इन करता हूँ, इसके करता अंदर हूँ जाके मैं इसका इसके अंदर एरिया जाके मैं निकालता इसका हूँ। एरिया निकालता हूँ. एरिया इज इक्वल्स एरिया टू इज 1 इक्वल्स टू बाय 2 1 बाई इंटू 2 इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट. तो तो बेस इज बेस इज 50 50 एंड द एंड द हाइट हाइट इज इज 120। 120. तो कितना तो आ रहा है कितना आ बेटा, रहा है जरा बेटा मुझे जरा मुझे बताएं। बताएं. इसका इसका एरिया एरिया कितना हो कितना गया? हो गया? मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 50 50 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 120। 120. 3000 आ रहा है 3000 आ रहा इसका है एरर। इसका एरर. कितना आ रहा कितना है? आ रहा है? आपके पास आपके भी पास भी 3000 आ रहा है 3000 आ रहा बेटा? है बेटा? जी सर जी। अच्छा जी, अच्छा ये जी ये दूसरा भी दूसरा राइट भी एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्राइंगल है. ये दरमियान वाला दरमियान भी वाला मैंने भी नहीं मैंने किया। नहीं किया. अच्छा, अच्छा इसका भी इसका भी फार्मूला होगा फॉर्मूला 1 होगा बाई 1 टू बाई इंटू 2 इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट. तो तो बेस बेस 80 हो 80 गई हो गई और और हाइट हाइट इसकी इसकी 150 हो 150 गई। हो गई. शफात शफात 170 इसलिए 170 नहीं ले इसलिए नहीं ले सकती सकते क्योंकि क्योंकि 170 इज द 170 इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज. ओके, ओके हाइट नहीं हाइट है। नहीं है. ओके सर, सही है सर। तो ये तो ये आंसर क्या आ आंसर रहा है क्या आ बेटा रहा है आपके बेटा आपके पास? पास? 1 1 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई बाई 80 80 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद विद 150। 150. सो द सो द आंसर इज आंसर इज 6000। 6000. इसका आंसर इसका कितना आंसर आ रहा कितना है? आ रहा है? 6000। 6000. ओके। ओके. अच्छा जी, अच्छा जी. ये ये दरमियान वाले दरमियान वाले ट्रायंगल का ट्राइंगल हम का लोग हम एक लोग एक एंगल एंगल निकाल चुके निकाल हैं चुके और हैं वो और वो एंगल बी एंगल है, बी वो है अभी वो हम अभी लोगों हम ने लोगों ने निकाला था निकाला था नीचे। नीचे. एंगल बी एंगल है बी हमारे है पास हमारे पास 52.9 नजर 52.9 आ रहा है नजर आ आपको? रहा है ये आपको वाला ये एंगल वाला एंगल 52.9। 52.9. नाउ Now दिस this ट्रायंगल इज triangle नॉट is अ not राइट a right एंगल angle ट्रायंगल, तो triangle, वी so हैव we टू have to टेक take प्रोडक्ट ऑफ product टू of two साइड्स sides, मल्टीप्लाई विद multiply with साइन sign इंक्लूडेड। included. प्रोडक्ट ऑफ Product टू of two साइड्स sides मल्टीप्लाई बाय multiply by साइन sign इंक्लूडेड। included. सो So एरिया इज area is इक्वल्स टू equals to 1 बाय 1 2। by 2. अब इन अब दोनों इन दोनों साइडों को साइडों को मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई और करें और क्योंकि इनके क्योंकि इनके दरमियान का दरमियान का एंगल आपके एंगल पास आपके पास मौजूद है, मौजूद है. तो तो मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 100 100 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 150 150 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद साइन साइन ऑफ ऑफ मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद साइन साइन ऑफ ऑफ 52.9। 52.9. इधर तो मैं इधर मैं ब्रैकेट लगा ब्रैकेट देता लगा ताकि देता था आप कि उस आप शेप उस में ना शेप घुस में जाएं। ना घुस जाएं. तो तो कैलकुलेटर ले लें कैलकुलेटर ले लें और और फ्रैक्शन का बटन फ्रैक्शन का दबाएं। बटन दबाएं. ऊपर लिखें ऊपर 1 लिखें नीचे 1 लिखें नीचे 2 लिखें 2 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 100 100 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 150 150 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद साइन साइन ऑफ ऑफ 52.9। 52.9. तो तो इक्वल दबाएं इक्वल तो इसका दबाएं तो आंसर इसका आ आंसर रहा है आ रहा है 5981। 5981. 0.8 आ रहा 0.8 है आ तो रहा है तो 0.87 में। 0.87 में. ठीक है ठीक है 5981.87 सर जी। जी. क्या नाम है क्या नाम है आपका? आपका? मारो मारो समझ आ गई समझ आ बेटा? गई बेटा? ये मैंने ये मैंने वर्किंग वर्किंग कर
कर ली है इसकी, ये मैंने वर्किंग कर ली है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस वर्किंग को जो है ना मैं यहाँ से कॉपी करूँ। एक मिनट, आपने ये वर्किंग यहाँ पे नहीं करनी है, मैंने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि डायग्राम यहाँ पे थे। आपने ये वर्किंग जो है पेपर में नीचे वर्किंग वाली जगह पर ही करनी है।
कट। ठीक है ठीक जी, है जी, नजर आ नजर रहा आ है रहा है सबको? सबको? तो तो हमारे हमारे पास पास Yes, थ्री sir. एरिया थ्री थ्री एरियाज आए एरियाज हैं आए हैं हमारे हमारे पास। पास। तो तो 3000 3000 प्लस प्लस 5981.87 5981.87 प्लस प्लस 6000। 6000। तो ये तो ये कितना आ कितना रहा आ है रहा जी है जी टोटल? टोटल? 9000 9000 9000 प्लस प्लस 5000 5000 इज is 14,981 14,981.87। 14,981.87। ये आ रहा ये है आ कि रहा है नहीं कि बेटा नहीं आपके बेटा आपके पास? पास? जी sir. अच्छा जी, अच्छा जी, एग्जामिनर एग्जामिनर कहता है कि कहता आप है कि आप हेक्टर में हेक्टर दो। में दो। एक एक हेक्टर हेक्टर बराबर है बेटा बराबर है बेटा 10,000 10,000 10,000 मीटर मीटर के। स्क्वायर के। तो ये तो ये 14,981 14,981 किसके किसके बराबर होगा? बराबर होगा? x के। एक्स के। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई तो करें तो मतलब मतलब x इज x इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 14981 14981 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 10,000 10,000 करना करना पड़ेगा पड़ेगा हमें। हमें। तो तो मतलब कि मतलब कि चार चार जीरोस जीरोस इधर इधर आने हैं, आने तो हैं, इट तो वुड इट बी वुड बी 1.4981 1.4981 हेक्टर्स। हेक्टर्स। एग्री और एग्री और नॉट? नॉट? यस और यस नो? और नो? Right, sir. बेटा ये बेटा ये 16 मार्क्स का 16 मार्क्स क्वेश्चन का है। क्वेश्चन है। P2 P2 P4 के अंदर P4 के अंदर P4 के अंदर P4 के अंदर ज्यादातर ज्यादातर एक्सपेक्टेड होता है एक्सपेक्टेड होता है IGCSE के IGCSE के और और GC के GC के पेपर 2 के पेपर अंदर 2 इस के तरह अंदर के इस तरह के क्वेश्चंस आते क्वेश्चंस हैं। आते हैं। कोर मैथ्स कोर वालों के मैथ्स लिए वालों के लिए इतने इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन होते। नहीं ठीक है। होते। ठीक है। अच्छा, द अच्छा, द डायग्राम डायग्राम शोज शोज राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। द एरिया ऑफ द द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल गिवन। इज गिवन। ठीक है। ठीक है। इसका इसका मतलब है मतलब कि इन है कि दिस इन दिस क्वेश्चन वी आर क्वेश्चन वी आर सपोज्ड टू सपोज यूज टू द यूज द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच ट्रायंगल इज विच इज 30। 30। तो एरिया तो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल इक्वल इज टू इक्वल व्हाट? टू व्हाट? शाफाहत। शाफाहत। एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल द बेटा ट्रायंगल किसके बेटा बराबर किसके होता है? बराबर होता है? Mm, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल द किसके ट्रायंगल बराबर किसके होता है? बराबर अभी होता है? हमने अभी किया हमने बेटा। किया बेटा। 90, 90 sir. 90 नहीं, 90 नहीं, फार्मूला क्या फार्मूला है क्या है एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का? ट्रायंगल 180 का? 180 सर। इसका है व्हाट इज द व्हाट इज द फार्मूला फॉर फार्मूला द फॉर द एरिया ऑफ एरिया द ऑफ द राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रायंगल? सर Sir, 1 half by 2 multiplication. into base into height। यस, यस, 1 by 1 2 बाय 2 into इंटू base बेस into इंटू height। Oh, हाइट। sir. इन इन दिस दिस ट्रायंगल ट्रायंगल बेस और बेस और हाइट आपके हाइट आपके पास पास ये ये चीज चीज मौजूद है मौजूद है और और एरिया आपके एरिया आपके पास ये पास ये मौजूद है। मौजूद है। एग्री? एग्री? सो सो मतलब कि मतलब कि 30 30 इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1 by 1 2 बाई टू इनटू, इंटू। जरा इसको जरा मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई लेता कर हूँ, ये लेता हो हूँ, ये हो जाएगा जाएगा 4x 4x माइनस माइनस 4। 4। इधर लिख देंगे इधर जी लिख देंगे जी 4x माइनस 4x 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लाई विद 2x 2x प्लस प्लस 5। 5। अब ये अब 2 ये यहाँ 2 पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो वहाँ रहा है, पे वहाँ पे जाकर जाकर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। होगा। तो तो 30 30 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 2 बाय इज 2 इज 60। 60। अब अब आपको आपको पता है कि पता है यहाँ कि पर यहाँ ये पर ये दोनों दोनों आपस में आपस में मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई रहे हो हैं। रहे हैं। तो पहले तो पहले 4x को 4x को इससे इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें, फिर करें, फिर इससे इससे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करें। तो तो 4x इंटू 4x इंटू 2x 2x इज इज 8x 8x स्क्वायर। स्क्वायर। 4x इंटू 4x इंटू 5 5 इज इज प्लस प्लस 20 20 वार 20x। 20x। अब अब माइनस 4 माइनस को 4 2 को से 2 से मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई तो करें तो माइनस माइनस 8x। 8x। प्लस प्लस माइनस इज माइनस इज माइनस माइनस 1 4 वन फोर 5 फाइव जार जार 20। 20। अरेंज करें अरेंज थोड़ा करें सा थोड़ा सा डाटा को। डाटा को। 8x 8x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 12x 12x माइनस माइनस 20, 20 क्योंकि क्योंकि 20x 20x माइनस माइनस 8x इज 8x इज 12x। 12x। अब जरा अब जरा 60 को 60 उस को साइड उस पे साइड पे फेंकने की फेंकने की बारी आ बारी गई आ है। गई है। तो ये हो तो ये हो जाएगा जाएगा 0 0 इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 8x 8x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 12x 12x माइनस माइनस 20 20 माइनस माइनस 60। 60। सो सो 0 0 इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 8x 8x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 12x 12x माइनस 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 80। 80। ये आ ये गया आ जी। गया जी। अच्छा, अच्छा इसमें क्या इसमें क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? क्या 4 4 कॉमन ले कॉमन ले सकता हूँ मैं सकता हूँ मैं इसमें से? इसमें से? यस और यस नो? और नो? जी. तो तो 0 इज 0 इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 4 मैंने 4 मैंने कॉमन ले कॉमन लिया, ले लिया, अंदर अंदर रहेगा रह गया 2x 2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x माइनस माइनस 20 20 आ गया आ गया ये। ये। डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4 ऑन 4 बोथ ऑन बोथ साइड्स। साइड्स। तो तो 0 0 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4 इज 4 इज 0। 0। सो सो 2x 2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x माइनस माइनस 20 20 इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0 0 शोन। शोन। एग्जामिनर ने एग्जामिनर ने कहा था कहा था कि कि शो शो दैट दैट 2x 2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x माइनस माइनस 20 इज 20 इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0। क्या 0। ये क्या मैंने ये मैंने निकाल लिया निकाल लिए यहाँ यहाँ पर? पर? यस और यस नो? और नो? Yes. ओके, ओके नाउ दे नाउ से दे से दैट दैट यूज यूज फैक्टराइजेशन टू फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा जी, फैक्टराइजेशन का फैक्टराइजेशन का मतलब है मतलब कि है कि आपको मिड आपको टर्म मिड ब्रेक टर्म ब्रेक इस्तेमाल इस्तेमाल करनी है। करनी है। ठीक है। ठीक है। तो तो इसका इसका मतलब है मतलब कि है कि आपने आपने
फर्स्ट इन लास्ट आइटम को मल्टीप्लाई करना है तो तो 2 20 20s आर are 40 40 40 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो करो तो तो 40 आए 40 आए और और प्लस माइनस करो तो 3 आए तो 5 8 आर 40 और और 8 8 में में से से 5 5 निकालें निकालें तो तो 3 3 आता आता है है कि कि नहीं? नहीं? यस और यस नो? और नो? Yes, sir. सो सो इट वुड इट बी वुड बी 2x 2x स्क्वायर। स्क्वायर आप आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इकट्ठा इकट्ठा लिखा करें। करें दरमियान में आपने ये 3x के फैक्टर्स बनाए हैं वो आप 5 और 8 दोनों के साथ माइनस लगाएं -5x माइनस -8x 8x। अब अब पूरा पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन जो है इसमें इसमें ग्रेड ग्रेड आपको यहाँ आपको पे यहाँ पे प्लस प्लस चाहिए चाहिए तो बड़े वाले का साइन प्लस कर दें ठीक है? ठीक है
अब आप अब आप कॉमन कॉमन निकालेंगे निकालेंगे इसमें इसमें से। से पहले दो में क्या कॉमन है, है, क्या क्या x x कॉमन कॉमन है? है? तो कैन तो आई कैन आई राइट राइट टू टू x x माइनस माइनस 5? 5? यस और यस नो? और नो? Yes, sir. 2x minus 5 bracket x plus 4 is equal वेरी to वेरी गुड। 0, गुड। sir. तो तो प्लस प्लस 4 आप 4 आप लिखेंगे लिखेंगे कॉमन, कॉमन, तो तो अंदर आ जाएगा जाएगा 2x 2x माइनस माइनस 5 यहाँ 5 पर यहाँ भी पर आ भी आ गया गया जी, जी। ठीक है जी। ठीक है जी। अब अब आपको आपको पता है पता कि है इन कि इन दोनों दोनों टर्म्स में टर्म्स में 2x 2x माइनस माइनस 5 फाइव जो जो है है वो वो कॉमन कॉमन है, है, तो तो 2x 2x माइनस माइनस 5 इज 5 इज कॉमन कॉमन एंड एंड x x प्लस प्लस 4 इज 4 द इज द लेफ्ट लेफ्ट ओवर। ओवर। सो सो ड्रैग अ ड्रैग अ लाइन, लाइन, लिखें लिखें 2x 2x माइनस माइनस 5 5 इक्वल इक्वल 0, 0, 2x इज 2x इज इक्वल टू इक्वल टू प्लस प्लस 5 5 और और x इज x इज इक्वल टू इक्वल टू 5 बाई 5 टू। बाई 2। एक एक आंसर मिल आंसर गया मिल जी, गया जी, x इज x इक्वल इज टू इक्वल टू 5 बाई 5 टू। बाई 2। एक x हाँ यही 2.55 है और दूसरा -4. और और x इज x इज इक्वल टू इक्वल टू माइनस माइनस 4। 4। अच्छा, अच्छा, जैन 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 मारो, मारो, जैन जैन मारो। मारो। आवाज आ रही है आवाज आ रही बेटा? है बेटा? जी सर। बेटा ये बेटा देखें ये आपके देखें पास आपके दो पास दो आंसर्स आए आंसर्स हैं, आए एक हैं, एक 5 बाई 5 टू बाई आया 2 है आया है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, एक एक -4 आई -4 है आई है नेगेटिव में। नेगेटिव में। अब ये अब ये इस इस x को x को डिनोट डिनोट करती है करती जो है कि जो कि ऊपर ऊपर क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा में हुआ लिखा है, हुआ यस है, और यस नो? और नो? तो इन तो दोनों इन में से दोनों में से कौन सा कौन सा आंसर आंसर वैलिड होगा? वैलिड होगा? आप कौन आप सा कौन सा आंसर आंसर सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे? करेंगे? 5/2। वेरी वेरी गुड, गुड, बिकॉज बिकॉज लेंथ कैन लेंथ नॉट कैन बी नॉट बी नेगेटिव, ठीक नेगेटिव। है। ठीक है। अब ये अब ये कहता है कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट BC, BC, आपने आपने BC BC लाइन को लाइन को फाइंड आउट फाइंड करना आउट है, करना तो है, तो BC BC स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, अब हम अब लोगों हम ने लोगों ने 5 बाई 5 टू बाई 2 डालना है डालना है इसमें, इसमें, तो तो हमें हमें इसमें इसमें इसकी इसकी वैल्यू वैल्यू निकालनी निकालनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो तो 4 4 इंटू इंटू 5 फाइव बाई बाई 2 टू माइनस माइनस 4। 4। तो ये तो क्या ये आ रहा क्या है आ रहा बेटा, है जरा बेटा, जरा बता दें। बता दे। 4 इंटू 4 इंटू 5 बाई 5 2 बाई टू माइनस माइनस 4, 4, तो तो 4 4 इंटू इंटू 5 बाई 5 बाई 2 टू माइनस माइनस 4। 4, तो ये तो ये आंसर आ रहा आंसर है आ रहा है 6। ये 6। ये कितना आ रहा कितना है? आ रहा है? अब अब 2x 2x प्लस प्लस 5 फाइव x की एक्स की जगह पर जगह पर 5 बाई 5 2 बाई 2 डाल दें, डाल दें, प्लस प्लस 5। 5 2 2 इंटू इंटू 5 बाई 5 2 बाई 2 प्लस प्लस 5। 5। तो ये तो ये आंसर आ रहा आंसर है आ रहा है 10। 10। ये क्या आ ये रहा क्या आ है? रहा है? 10। 10। तो तो कैलकुलेट कैलकुलेट BC, BC, BC BC हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज है, है, तो तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू 10 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर। स्क्वायर। तो तो BC BC इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट ऑफ, ऑफ, ये क्या ये क्या हुआ हुआ यार? यार? चलें, वो क्वेश्चन कुछ अंडू हो गया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो तो BC BC इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ रूट 10 ऑफ 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 6 6 स्क्वायर। स्क्वायर। तो तो BC BC इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 10 10 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 6 6 स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये तो आ ये रहा आ रहा है आंसर आंसर 11.66, 11.66। 11.66। ये ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन उसी तरीके से तरीके है, से है, आप लोग आप खुद लोग खुद सॉल्व सॉल्व करेंगे। करेंगे। नाउ लुक नाउ एट लुक एट दिस, दिस, इज दिस इज दिस आर्क आर्क लेंथ और लेंथ और नॉट? नॉट? बेटा बेटा, इज दिस इज दिस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर और सेक्टर और नॉट? नॉट? बराबर? बराबर? कैन यू कैन हियर यू मी? हियर Yes, मी? sir. Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए देखिए, दे से दे दैट द द डायग्राम डायग्राम शोज द शोज द सेक्टर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल। अभी अभी मैं मैं बड़ी बड़ी डिबेट कर डिबेट चुका कर हूं चुका आपसे, हूं ये आपसे, ये सेक्टर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल सर्कल मींस दैट मींस दिस दैट इज द दिस इज द पार्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल। एग्री और एग्री और नॉट? नॉट? यस और यस नो? और नो? Yes. ओके, Yes, ओके। sir. so it सो इट means मींस that दैट this दिस length is लेंथ इज also आल्सो 8. 8। Agree? एग्री? Sir. Now the नाउ द examiner is एग्जामिनर इज asking her to आस्किंग हर टू find the फाइंड द area of the एरिया ऑफ द sector. अच्छा, सेक्टर। अच्छा, area of the एरिया ऑफ द sector का सेक्टर का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है, होता है, area एरिया of the ऑफ द sector is सेक्टर इज equals to इक्वल टू theta थीटा divided by डिवाइड बाय theta थीटा divided by डिवाइड बाय 360 360 multiply with मल्टीप्लाई pi विद पाई r आर square. स्क्वायर। Agree? एग्री? Now नाउ area is एरिया इज given, गिवन, हमें हमें area एरिया given है, गिवन है, हमें हमें area एरिया find out फाइंड करना आउट है, करना है, and for एंड the फॉर द area एरिया वी नीड area के एरिया के लिए लिए हमें हमें चाहिए चाहिए थीटा, थीटा, क्योंकि क्योंकि थीटा थीटा अननोन है। अननोन है, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई आर आर की की वैल्यू जो वैल्यू है हमें हमें गिवन गिवन है, है दैट दैट इज इज 8 8 स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन लेकिन अभी अभी हम हम लोग लोग इसमें नहीं इसमें यूज नहीं कर यूज कर सकते सकते क्योंकि अभी क्योंकि हमारे अभी पास हमारे पास एरिया नहीं एरिया है। नहीं है। मैंने मैंने कल भी कल भी
कल भी भी परसों की क्लास के अंदर भी ये चीज डिबेट में लेकर आया था कि दैट that दिस this इज माय is my आर्क arc लेंथ। length. एग्री? Agree? यस और Yes नो? or no? Yes, sir. एंड And आर्क लेंथ arc इन length दिस in this क्वेश्चन इज question is गिवन। given. सो So आर्क लेंथ arc का length का फॉर्मूला formula है है arc arc length length is is equals to equals to theta theta divided by divided by 360 360 multiplied by multiplied by 2 pi 2 pi r। r. राइट Right, मारो? Maro? यस और Yes नो? or no? हाजिम, इज Hazim, इट is it क्लियर? clear?
Yes, sir. मारो। Is this Is this clear? clear? तो तो arc length in this question is given which is 6.4. Theta is not given, theta is unknown, so we can find out by using this formula multiplying by 2 pi and r is 8. अच्छा शफात जरा बेटा नोट करें। Yes, sir. in this question हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं, ये थीटा है हमारा, एंगल है, ठीक है, एग्री, और ये एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है, एग्री। Yes, sir. तो तो ये ये 360 इज इन द डिवीजन ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर आकर ये मल्टीप्लाई होगा, राइट और रॉन्ग, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, यस और नो। Yes. तो कैलकुलेटर में डाल के थीटा निकाल लें, फ्रैक्शन का बटन दबाएं, ऊपर लिखें 6.4 मल्टीप्लाई बाय 360, नीचे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 पाई, लिख देता हूँ डायरेक्ट। मेरे पास आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 45.8। यही आ रहा है आप लोगों के पास भी? Yes, sir. अच्छा 5.83. अच्छा, तो 3 नहीं लिखना, 8 ही लिखना है। एरिया के फॉर्मूले में हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो इट विल बी 45.8 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई विद पाई, आर की वैल्यू होगी 8 स्क्वायर। तो आप फार्मूला को कैलकुलेटर में डाल दें, 45.8 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई विद शिफ्ट दबा के पाई, आर की वैल्यू है 64, मतलब 8 स्क्वायर है 64 ना, डायरेक्ट कर लिया मैंने, 25.57, सो 25.57, लेकिन आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना है, तो आंसर लिखेंगे 25.6, ठीक है जी, समझ आ गई? जी सही सही होगा। अच्छा जी, Yes, कहता sir. है 25.579 तो वही 25.6 आ रहा है। अच्छा कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 65 मीटर। अब देखें ये क्वेश्चन गिवन है और ये शफात आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो पहले आप सेक्टर ऑफ सर्कल बनाओगे, अच्छा, सेक्टर ऑफ सर्कल ये चीज है, ठीक है। अच्छा ये कहता है कि रेडियस है 65 मिलीमीटर, तो रेडियस है 65 मिलीमीटर, तो ये भी 65 मिलीमीटर होगा। सेक्टर एंगल है 42, ये हो गया जी 42। अच्छा गिव योर आंसर्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाय 360, मतलब कि 42 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर की वैल्यू हो गई 65 स्क्वायर। एरिया निकाल के बताएं जी मुझे, कैलकुलेटर करें जी जल्दी से, फ्रैक्शन का बटन दबाएं, ऊपर लिखें 45, नीचे लिखें 360 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के पाई मल्टीप्लाई विद 65 स्क्वायर, so the answer is 148.54. बेटा गलत बताया है, मैं कैलकुलेटर खुद यूज कर रहा हूँ, ओह सॉरी मेरी गलती है, मैंने 45 लिखा है 42 नहीं। यू आर राइट बेटा। जी सर 1659 नहीं 1548 आ रहा है बेटा। 0.54 सर। आपने गलती से 42 की जगह 45 लिख दिया होगा मेरी तरह। मैंने हाँ यही किया है सर, यही हाँ वो एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में 45 आया था, तो मुझे वही 1548.54 अच्छा अच्छा ये आ रहा है मिलीमीटर मिलीमीटर में, में, तो ये हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किसमें? सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में होते हैं बेटा 10 मिलीमीटर, यस और नो? तो 10 से सर मल्टीप्लाई तो कर तो 1548.5 बेटा जरा देखो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अच्छा जल्दबाजी में ना आपका काम खराब होगा। 148.5 इज इक्वल टू 10x, सो so डिवाइड डिवाइड बाय बाय 10 करना है, ठीक है। तो तो इट वुड बी x इज इक्वल टू 154.8.85, तो आंसर होगा 154.9, 154.9, ठीक है जी बेटा, 1 डेसिमल तक राउंड कर दिया मैंने। अगेन यही क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। लुक एट दिस, ये क्या है जी, ये एक कोन है, a cone is made from the sector by joining O to A and O to B. Calculate the radius of the cone. हमें radius of the cone को कैलकुलेट करना है। अच्छा ये पार्ट सी इसी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट है। आपको नजर आ रहा है बेटा ये कोन? जी जी अच्छा नीचे कर दो सर। ये आप लोग ये क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, अगला क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ। आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा कहता है कोन हैज अ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर हाइट, तो पहले आप कोन बनाएं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में आप लोगों को कोन बनाना आ जाए, ठीक है। कोन ऐसे बनती है, यस और नो? यस। अच्छा ये सेंटर में हो गया इसका सेंटर, ये हो जाएगा इसका रेडियाई जो कि 4.5 है, एंड दैट्स द हाइट।
दैट इज 10.4, ये आ गया जी 10.4 एंड दैट इज 4.5। यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। वॉल्यूम निकालना है तो V इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 4.5 स्क्वायर और हाइट की वैल्यू है 10.4। अच्छा, गिव योर आंसर्स इन टर्म ऑफ पाई। तो हमने पाई को रिमूव नहीं करना कैलकुलेटर में, जो पाई वाला आंसर है वो लिखना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई विद 1/3 मल्टीप्लाई विद पाई 1/3 मल्टीप्लाई विद पाई मल्टीप्लाई विद 4.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 10.4। ठीक है जी, तो आंसर आ रहा है मेरे पास 351 बाय 5 पाई। राइट बराबर, समझ आ गई बेटा? Yes, sir. जी 351 सर। by 5 pi. अच्छा, क्या कहता है? A solid metal cube, a solid metal cube of side 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्यूब बनाए जरा, कि क्यूब बनाना भी आता है कि नहीं। तो क्यूब ऐसा होता है ना। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, हर साइड इसकी 20 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट किया गया है और इससे 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कैपेसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब। तो मतलब 20 क्यूब क्या आता है बेटा, जरा बताएं। 20 क्यूब क्या आता है बेटा? 20 क्यूब 8,000, sir. अच्छा जी, ये 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। मारूफ, समझ आ रही है बेटा? मारो। अच्छा, शी इज नॉट इन क्लास। अच्छा, बराबर बेटा। अब इसको किया गया है मेल्ट। क्या किया गया है? मेल्ट। अच्छा, जब इसको मेल्ट किया गया है तो इसका मतलब है इससे 40 सॉलिड स्फीयर्स बनेंगे और हर एक का रेडियस r सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम भी 8000 ही होगा। यस और नो? Yes. यस तो सर। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला ऑलरेडी गिवन है ऊपर, और द फार्मूला इज 8000 इज इक्वल्स टू 8000 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई और r क्यूब। हमें r को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। तो और इन्होंने कहा है कि इससे बनाए गए हैं कितने 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए गए हैं इसी वॉल्यूम से। तो पहले हम लोग r निकाल लेंगे और इस वॉल्यूम को डिवाइड बाय 40 भी करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय, डिवाइड बाय 40। क्योंकि हर एक स्फीयर का इस तरीके का ही होगा। तो अब हम लोगों को सब्जेक्ट मेकिंग करनी है। तो 8000 डिवाइड बाय 40 हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। 4/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ पर 3/4 होकर जाएगा। यस और नो? यस सर। पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। यस और नो? Yes. ये हो गई जी इसकी सब्जेक्ट मेकिंग। अब कैलकुलेटर में आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर लें। 8000 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे आ गया जी 40 मल्टीप्लाई विद 4 पाई 47.74 47.74 sir. 47.74 आ रहा है। 47.74 इज इक्वल टू r क्यूब। अब इसका क्यूब रूट ले लें जरा। क्यूब रूट ले लें तो शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट का बटन दबाएं और आंसर दबा दें। तो 3.62 आ रहा है। 3.62. तो 3.627। तो ज़रा थोड़ा सा इसको राउंड करेंगे। r इज इक्वल टू 3.63। समझ आ गई? इसका मतलब है कि एक स्फीयर इन्होंने 40 स्फीयर बनाए हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जैसे मैं अब बना रहा हूँ। और हर स्फीयर का जो रेडियस होगा ना वो होगा 3.62। कितना होगा? 3.62। जी. समझ आ गई है बेटा? जी, sir. अब देखिए कोन के ऊपर हेमिस्फीयर को रखा हुआ है और कह रहा है कि जी कैलकुलेट द डायग्राम शोज अ टॉय विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर ऑन टॉप ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करेंगे ना, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ द कोन के लिए हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है 1/3 पाई। r की वैल्यू है हमारे पास 4 स्क्वायर और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 9। राइट, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आ जाएगा क्या? कैलकुलेटर पे डालें 1/3 मल्टीप्लाई विद पाई
multiply with 4 square multiply with 9, तो ये हो गया आंसर हमारे पास 48 पाई आ रहा है। 48 pi sir. अच्छा जी, कहता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर गिवन है और शफात नजर आ रहा है कि ये हेमिस्फीयर है, यस और नो। Yes sir. तो आपने वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर के लिए 4/3 पाई आर आर क्यूब क्यूब इसको डिवाइड बाय 2 भी करना है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। तो तो 4/3 पाई आर की वैल्यू है 4 क्यूब, तो डिवाइड बाय 2। तो तो ये सब कुछ कैलकुलेटर में डाल लें, डबल फ्रैक्शन भी डाल सकते हैं। पहले फ्रैक्शन का बटन दबाएं, ऊपर दोबारा फ्रैक्शन दबा दें। 4/3 268.08 sir. क्या चीज बेटा नहीं है, गलत कर रहे हैं। जरा एक मिनट एक मिनट खामोश, मैं आपको कैलकुलेटर में जरा डालना सिखा दूं, एक मिनट सब्र करें। कि कि डबल फ्रैक्शन कैलकुलेटर कैलकुलेटर में कैसे डालते हैं। डालते हैं। जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? Yes. Sir. पहले पहले फ्रैक्शन का बटन दबाएं और फिर दोबारा फ्रैक्शन दबा दें। ऊपर लिखें 4, नीचे लिखें 3, नीचे लिखें 2। अच्छा ऊपर आ जाएं। अच्छा अच्छा मुझे जरा बताएं, पाई है ना, तो शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाएं तो पाई आ जाता है। आर की वैल्यू है 4 क्यूब, राइट? क्या आर की वैल्यू क्या थी? यही वैल्यू जो थी ना जो मैंने लिखी है, शिफ्ट दबा के पाई क्यूब। यही यही वैल्यू वैल्यू है ना भाई? चेक कर ले। तो तो ये आ रही है आंसर 134 0.41 यार 0.041 128/3 इट्स 128/3 सही हो गया 128/3 सर, अभी मैंने भी किया. 5, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा गिव अच्छा योर गिव योर आंसर आंसर टू टू करेक्ट टू नियरेस्ट नियरेस्ट सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मैं SND भी दबा देता हूँ। तो SND जरा दबाते हैं। तो ये आ तो रहा ये आ है रहा है 134 134.0 क्या आ रहा क्या आ है रहा है 134 क्या आ रहा क्या आ है रहा है बताओ? 0.04 सर. 04। तो ये कहता है कि नियरेस्ट क्यूबिक मीटर पे आप इसको राउंड करें तो 134 इज द आंसर। एग्री? Yes sir. इजी और मुश्किल? आसान. Very easy. चलें चलें जी, जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच, मजा मजा आया। आया है। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। Okay sir. Allah Hafiz.